आ रहा है कंसेंट का? हाँ सर, आया है अभी। है सर। So we have covered vectors, right? Various types of vectors के बारे में हम लोगों ने बात किया, right? And efficiencies के बारे में भी बात किया था. I think I have mentioned vectors, right? And Yaks. And I think we have covered this. We were in previous lecture. This was the last thing I have taught. Okay. No, like this one. This one was the last thing I taught. Other methods of transformation, right? And now we have to start with nucleic acid detection. तो nucleic acid कैसे डिटेक्ट करते हैं? Nucleic acid में क्या क्या होगा? What do you mean by nucleic acids? So there are two nucleic acids, right? RNA, DNA. और कोई रहता है क्या? Yes. Hello. So अगर if I go for a lab based or normal lab based technique, so I can detect DNA and RNA, or I can estimate DNA RNA by RNA by Orsinol method and DNA by TPM method. If you have if you remember or if you can recall about that experiment. I think third year में किया था या second year में किया? Okay. तो गोइंग क्योंकि तो फिर जो आपका एस्टिमेशन मेथड्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन के यूजिंग केमिकल मेथड्स, केमिकल एस्टिमेशन, सो दीज आर इन आई थिंक माइक्रोग्राम्स, मिलीग्राम्स और माइक्रोग्राम्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कंटेंट, कितना कॉन्सेंट्रेशन आपने डीएनए दिया या रेंज किया, लीनियरिटी मिल रही है. ओके, बट थिंग इज if you want to detect nanograms, nucleic acids in nanograms. So we can use UV range 260 nanometer. And 260 nanometer क्यों use कर रहे हैं? Yes, 260 nanometer. Why we are using 260 nanometer as a DNA wavelength? absorbs. DNA is detected at that range, Yeah. 260. तो absorption जो maximum absorption रहता है DNA का, it is in 260 wavelength, 260 nanometer wavelength. Okay. अच्छा, there is some difference between single stranded DNA and double stranded DNA. ओके, सेम लेंथ का डीएनए फॉर एग्जांपल, ये सेम कंपोजिशन है, अगर मैं उसको डबल स्टैंडर्ड में रखूं एंड दूसरे को मैं सिंगल स्टैंडर्ड में रखूं, देयर वुड बी अ डिफरेंस इन यूवी एब्जॉर्प्शन. तो वो देयर इज सम फिनोमेना, उसके ऊपर एक फिनोमेना है, उसको क्या बोलते हैं? एनीवन? डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हैव डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ठीक है, इट मे बी ऑफ सेम कंपोजिशन एंड सेम लेंथ. Okay, so why there is a difference between single stranded DNA and double stranded DNA UV absorption? Right? Hello? Yes, can anyone yes, बोल सकता है कोई? Hello? Yes, students. Can anyone answer or should I answer? Sir, you answer. Okay. So basically, a single stranded DNA absorbs more amount of UV in comparison to double stranded DNA. तो इसको हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक इफेक्ट बोला जाता है. Okay. So hyperchromic effect मतलब maximum absorption and like for single stranded DNA, and जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा तो हाइपोक्रोमिक एब्जॉर्प्शन रहेगा यूवी. ओके, सो बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए या आरएनए, इट अब्जॉर्ब्स मोर अमाउंट ऑफ यूवी. ओके, बिकॉज ऑफ एक्सपोज बेसिस. जो सिंगल स्टैंडर्ड में क्या रहता है, जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस रहते हैं, दे आर एक्सपोज. सो this results into higher absorption of. तो उसमें आपका जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वो ज्यादा अच्छा पीक दिखाता है इन 260 नैनोमीटर.
Okay, and yeah, but सिंगल स्टैंडर्ड अगर आरएनए रहेगा सेम कंपोजिशन का एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा तो उतना डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सेम कंपोजिशन मतलब सेम सीक्वेंस के बात ठीक है, या सेम कंपोजिशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है देयर इज आल्सो प्रोटीन कंटामिनेशन। प्रोटीन कंटामिनेशन कैसे आएगा? हाउ प्रोटीन कंटामिनेशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन डीएनए 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 कैसे आ सकता है डीएनए में प्रोटीन कंटामिनेशन? यस, हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. Sir. Yes, sir. एक मिनट हाँ। ओके, Pranil is here. Yes, is Pranil here? No, sir. Okay, might be some connection issues. Okay, so I was talking about protein contamination and protein contamination, right? And it is introduced when you are extracting DNA or nucleic acids. So, what is the protocol of DNA extraction? Yes. What is the right? What is the protocol? Basic protocol for DNA extraction? Yes. Can anyone answer? So basically, जो आपका nucleic acid extract होता है, so standard method is phenol chloroform isoamyl method, but there are some reagents that are being used. इसमें एक one shot में आपका DNA, RNA and protein at a single go extract हो जाएगा. That is called as trizol method. If you want, I can show some videos or provide you a link with IIT Bombay का है of Dr. Sanjeeva Srivastava lab है. They conduct some proteomics work, proteomic work है उनका, and उनके mass specs भी है, बहुत सारी चीजें. तो you can go through that video and वो पूरा demonstrate करके बताते हैं how they extract DNA, RNA and protein at a single. ठीक है, ठीक है. तो थिंग इज कि प्रोटीन जो जब डीएनए या न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन हो रहा है, सो इट में रिजल्ट इनटू सम काइंड ऑफ कंटामिनेशन फ्रॉम प्रोटीन. ठीक है, आरएनए कंटामिनेशन होता है, बट देयर इज अ डिफरेंस. जैसे मैंने बताया, आरएनए इज अनस्टेबल फॉर लाइक फॉर एग्जांपल लॉन्गर टाइम आप इंक्यूबेशन के लिए नहीं रह सकते. ठीक है, so it is like mRNA is stable for 30 minutes. tRNA and rRNA are stable, much more stable. Okay, so herein we use for example, if I want to extract RNA, I will after nucleic acid extraction I will have to go for I will be using DNase enzyme. Okay, DNase enzyme, and I will be destroying DNA. Okay, my RNA would be left intact, and I can then go further study RNA. Okay, I can use mRNA and then go for a reverse transcriptase PCR. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें. Okay, if I want to isolate DNA, we know about RNA that it is unstable for 30 minutes, so I can store DNA in room temperature. Ethanol से हम लोग treat करते हैं वैसे. And then like for example, if I expose or store it at room temperature for overnight approximately 16 to 18 hours, so RNA will be destroyed. Most of the RNA will be destroyed. Additionally, I can use RNase enzyme. Okay,
RNA एंजाइम से क्या हो जाएगा, RNA जितना भी रहेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. Okay, so I will be left with DNA. But these both extraction method doesn't tell you about proteins. Protein के बारे में. So protein is basically destroyed using phenol and chloroform. They both actually वो इसको degrade कर देते हैं proteins को, and then it is precipitated and centrifuged for 12,000 rpm for 20 say 30 minutes. Okay. So if you want to know about if your nucleic acid sample consists of protein as a contaminant, so you can go for 260 by 280 nanometer का measurement. ठीक है. तो उसमें क्या क्या पता चलेगा आपका, तो ये पता चलेगा कि आपका जो एक मिनट, आपको पता चलेगा कि प्रोटीन कंटामिनेशन है कि नहीं. ठीक है. सो दिस रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली, अगर आपका रेशियो आता है 1.8 या 2 के बीच में, so this is an ideal ratio that your DNA extraction, nucleic acid extraction is perfect. इससे ज्यादा या इससे कम आता है तो it is said कि there might be some contamination. प्रोटीन कंटामिनेशन भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं 260 by 280 नैनोमीटर 280 नैनोमीटर के रेशियो में. सो दिस रेशियो इज इम्पोर्टेंट. कभी भी डीएनए एक्सट्रैक्ट करो तो you have to use this ratio. So there may be protein contamination, there be phenol contamination. ठीक है. और कुछ अलग चीजें भी हो सकती है जिसकी वजह से कंटामिनेशन हो सकती है. ओके. ठीक है. Then I can also detect nucleic acid. अभी जैसे मैंने ओके I've isolated DNA. ठीक है. बट मुझे क्वालिटी का पता नहीं. So I can run a gel, agarose gel electrophoresis, and then उसमें obviously I will be using ethidium bromide, right? ETBR हो गया शॉर्ट फॉर्म. इथिडियम ब्रोमाइड. तो इथिडियम ब्रोमाइड है क्या? यस, म्यूटेशन चैप्टर में आपने पढ़ा. क्या है इथिडियम ब्रोमाइड? व्हाट इज इथिडियम ब्रोमाइड? Chelating agent. हाँ. ओके. म्यूटेशन में कुछ पढ़ा था. म्यूटेशन चैप्टर में पढ़ा रहा है. Sir, intercalating agent. Yes, correct. ठीक है. Perfect example, intercalating agent. Okay, so basically it belongs to acridine orange family, right? And this ये जो family के जो आपके dyes रहते हैं, it intercalates within DNA. So what is intercalating? It is nothing but जैसे फॉर एग्जांपल DNA है एंड ये इधर आपके न्यूक्लिक एसिड के बीच में जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स है उसके बीच में जाके बैठ जाता है. तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरकैलेट. ठीक है. ठीक है. तो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल आपका न्यूक्लियोटाइड्स है ना, उसके बीच में जाके बैठ गया. सो इट मे कॉज एडिशन म्यूटेशन और डिलीशन म्यूटेशन. इट डिपेंड्स ऑन कि सेल will replicate after it or cell has replicated and then it is inside. ठीक है. तो ये this was covered in TY, hopefully you remember. Okay, so सामने लिखा है intercalating agent. Okay, I don't know why. Okay, and this is fluorescence. So it gives fluorescence. और UV में जब एक्सपोज करते हैं तो कौन सा कलर का फ्लोरेसेंस देता है? यस, कलर. व्हाट इज द कलर? Orange color, sir. हाँ, परफेक्ट. ऑरेंज कलर, क्योंकि मैंने बताया जैसे एक्रिडिन ऑरेंज फैमिली को बिलोंग करता है. ओके, सो इट विल फ्लोरेस ऑरेंज. ओके. Next agent or dye can be used for detection और quantitative analysis भी किया जा सकता है. साइबर SYBR ग्रीन. ठीक है. SYBR ग्रीन ये आपको इफ यू हैव हर्ड अबाउट PCR, उसमें आपने RT-PCR सुना रहेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. फिर एक आपने सुना रहेगा रियल टाइम PCR. रियल टाइम PCR में आपका डाई जो यूज हो रहा है वो SYBR ग्रीन हो रहा है, साइबर ग्रीन बोल सकते हैं. ओके. सो आई थिंक यू हैव कवर्ड दिस इन आल्सो योर TYs. आप जो क्या होता है, जितना ज्यादा डबल स्टैंडर्ड DNA रहेगा वो आपका ये
दोनों डीएनए स्ट्रैंड के बीच में जाके सिट करेगा या इंटरकैलेट करेगा। ओके, तो ये जितना ज्यादा डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा उतना इंटरकैलेट करेगा, उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि पीसीआर में डबल स्टैंडर्ड डीएनए का क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्यूपीसीआर, क्वांटिटेटिव पीसीआर, क्योंकि हम लोग एक्चुअली क्वांटिटी पता लगा। ठीक है, ठीक है। सो ये क्यूपीसीआर में यूज होता है। तो ये तुम लोग थिंग इज कि ईटीबीआर इज कार्सिनोजन, हाईली पोटेंशियली कार्सिनोजन। तो जब भी इसका यूज करोगे ऑब्वियसली यू हैव टू यूज ऑल सेफ्टी मेजर्स। यू हैव टू यूज नाइट्रिल ग्लव्स, नॉट योर नॉर्मल ग्लव्स। तो जो नाइट्रिल ग्लव्स है इट इज ये आपके जो ईटीबीआर है अदर केमिकल्स उसको अंदर सीप नहीं करने देते। ठीक है, इन कंपैरिजन टू आपका जो नॉर्मल लेटेक्स ग्लव्स रहते हैं उसके कंपैरिजन। ओके, नाउ instead of there are some options ETBR के भी अभी safer options आए, क्योंकि ETBR has to be जब भी आपका यूज हो गया जेल का, तो जेल के बाद आपको क्या करना पड़ता है, you have to throw it। ठीक है, या 3 to 4 टाइम यूज किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम यूज किया एंड देन यू हैव टू थ्रो इट। ठीक है, तो थ्रो जब हम लोग करते हैं, थ्रो ऐसे नहीं करते, वी हैव टू डिस्कार्ड इट प्रॉपर यूजिंग प्रॉपर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, आप उसको उसमें क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल डाल के उसको 1 वीक के लिए रखते हैं, देन यू हैव टू बॉईल इट ऑफ, होपफुली ITBR डिग्रेड। Okay, now instead we can go for a cyber greed, but thing is कि this dye is highly expensive, 50,000 60,000 I think 5 to 10 milligrams का आता है, बहुत महंगा था। ठीक है, that's why normal labs में यूज नहीं किए जाते, ओनली क्वांटिटेटिव पीसीआर जितना रहेगा उधर आपको देखने मिलेगा। ओके, नाउ न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन तो हम लोगों ने ये देखा, यूवी स्पेक जो यूज करते हैं फॉर डिटेक्शन। एक और चीज बताने वाला था, यूवी स्पेक में आपका नॉर्मल आप देखते हो, आपने देखा रहेगा यूवी स्पेक देखा है, जिसमें आप 1 ml का कवर्ट्स यूज कर सकते हो, तो वो भी कैरी आउट कर सकते हो। प्लस एक दूसरा जो मैकेनिज्म है, अम, उसमें खाली इफ यू हैव टू यूज ओनली माइक्रोलीटर्स ऑफ डीएन, 1 to 2 माइक्रोलीटर्स कितना हो गया, बहुत कम हो गया। ठीक है, 1 माइक्रोलीटर, मैक्स मैक्स टू मैक्स 2, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इतना ही यूज हो जाए, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल यू आर रनिंग अ पीसीआर ऑफ 25 माइक्रोलीटर्स का। ठीक है, अगर आपका जो प्रोडक्ट है अगर आप एमएल में चाहिए तो आप उतना बना नहीं सकते ना, फिर उतना आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और या डाइल्यूट करना पड़ेगा, तो फिर आपका पूरा पर्पस निकल जाएगा कि आपने कॉन्सेंट्रेट किया था डीएनए, देन यू आर डाइल्यूटिंग इट अगेन। ठीक है, तो ये माइक्रोलीटर्स में रहता है, तो ये आप यूवी स्पेक के लिए जो नॉर्मल यूवी स्पेक्स रहते हैं उसको यूज नहीं करेंगे। यू आर देन यू कैन देन यूज अनदर इंस्ट्रूमेंट यूवी स्पेक के बेसिस में काम करता है, इसको बोलते हैं नैनो ड्रॉप, हाईली एक्सपेंसिव, अराउंड 4 to 5 lakhs का इंस्ट्रूमेंट आता है, छोटा सा रहता है आपका, टिश्यू पेपर बॉक्स रहता है उतना ही रहता है, स्क्वायर शेप। बहुत सेंसिटिव मशीन है, इट कैन डिटेक्ट आरएनए डीएनए एंड प्रोटीन, मतलब न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कंटामिनेशन आपको पता लग सकता है। यू कैन ऑल्सो एस्टिमेट प्रोटीन यूजिंग दिस यूवी 280 नैनोमीटर में प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पे अंदाजा है। ओके, अगर आपको इफ यू वांट टू सी यूवी स्पेक नैनो ड्रॉप फ्रॉम machine, I will show it after this lecture. Now, for detection of RNA or DNA, there are multiple methods. अगर मुझे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस के बारे में पता करना है या उसका कंपोजिशन जानना है, ठीक है, तो मैं इधर ये यूज कर सकता हूँ, प्रोब्स का प्रोब्स यूज किया जा सकता है। ठीक है? अगर विदाउट प्रोब अगर देखना है तो मैं G+C कंटेंट भी चेक कर सकता हूँ। व्हाट इज G+C कंटेंट? सेकेंड ईयर में आई थिंक पढ़ा होगा तुम लोगों ने, G+C कंटेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं G+C कंटेंट? यस, एनी आइडिया?
यस। कुछ रेशियो लेके निकालते हैं, G प्लस C अपॉन A प्लस T इज इक्वल टू 1, ऐसे कुछ तो है। नहीं नहीं। तो बेसिकली वी एक्चुअली क्या जो सैंपल डीएनए वी हैव टू हीट इट, हीट करना पड़ता है, ये मतलब डीनेचर करना पड़ता है डीएनए। डीएन व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचरेशन? वी हैव टू कन्वर्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, सिंपल एकदम। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को मुझे कन्वर्ट करना है सिंगल स्ट्रैंडेड। तो बहुत बड़ा डीएनए रहेगा तो उसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, ओके। सो 95 डिग्रीज पे जो जितना भी डीएनए रहेगा इट विल बी, ये मेल्ट हो जाता है, पूरा का पूरा मेल्ट हो जाता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में ये हो जाता है, डीनेचर। देन धीरे धीरे क्या करते हैं हम लोग, जो सिस्टम रहता है उसका टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं। एंड रिड्यूस करते तो फिर अभी हम लोग यूवी स्पेक यूज किया जाता है, एंड उसका चेक किया जाता है कि कितना डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्मेशन हुआ है और कितना सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, उससे फिर आपको एक पर्टिकुलर आप ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं, एंड देन यू कैन डिटरमाइन इफ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये आपका जी प्लस सी कंटेंट कितना है। तो बेसिकली जी एंड सी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, सो एंड ए एंड टी है ये इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली 50% ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू ए। ठीक है, तो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो एंड देन यू कैन डिटरमाइन कि जी प्लस सी कंटेंट कितना है, या टेम्परेचर आप एक हाई पीक पे लेके जाओ एंड देन यू रिड्यूस द टेम्परेचर। बट ज्यादातर ये मेथड यूज होता है, टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तब पता चल जाता है। तो ए एंड टी बॉन्ड्स आर ब्रोकन बिफोर दैट। ठीक है, बिफोर जी एंड सी बॉन्ड्स कैन बी ब्रोकन। तो क्या होता है, पीक मिलता है एक अच्छा खासा। जैसे ए एन टी हो गया तो आपको अभी मैं आई थिंक रॉन्ग बता रहा हूँ इधर, मतलब ग्राफ रॉन्ग बता रहा हूँ। सो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फर्स्ट बॉन्ड्स दैट वुड बी ब्रोकन विल बी ए एन टी। ठीक है, ठीक है, तो उसमें जितने भी ए एन टी रहेंगे बॉन्ड्स रहेंगे इन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए इट विल बी ब्रोकन अप। और अगर ब्रोक ये डीनेचर हो गए तो आपको ऐसा डीएनए मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, बबल क्रिएट हो जाएगा, एंड जिधर जिधर जी सी रहेंगे उधर आपको ये बॉन्ड्स इंटैक्ट रहेंगे। तो अभी क्या हो गया, आपका डीएनए, सम ऑफ द डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सम ऑफ इट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, राइट? तो हाइपो एंड हाइपरक्रोमिक इफेक्ट का मिक्सचर हो गया, एंड यू विल बी यूजिंग यूवी 260 नैनोमीटर पे, एंड यू कैन डिटेक्ट कि कितना डबल स्टैंडर्ड डीएनए कितना सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, उससे अपने को जी प्लस सी कंटेंट पता चल जाता है। ठीक है, दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्निक, और अप्रोक्सीमेटली 10 years बैक ये पूरा का पूरा जो ये जो टेक्निक था जी प्लस सी कंटेंट निकालने के लिए, इट वाज नॉट कंडक्टेड इन इंडिया। ठीक है, इट वाज, तो जितने भी रिसर्चर्स थे दे यूज टू टेक हेल्प ऑफ, और ये एक्सपोर्ट किया जाता था जॉब टू जर्मनी। Okay. Now I think there is a institute called as NCMR. If you have visited, ये पुणे में है। ठीक है, एंड होपफुली these guys have researchers उधर है जो they they might be having G plus C content, G plus C analysis, G plus C percentage. ओके, तो काफी एक्सपेंसिव टेक्निक था, तो वो जमाने में जी प्लस सी कंटेंट फेम एनालिसिस एंड कुछ और एनालिसिस करने के लिए दे यूज्ड टू चार्ज अराउंड 2 lakhs। ओके, पर सैंपल, पर सैंपल। ओके, आगे चलते हैं। सो जब भी अगर फॉर एग्जांपल अब मुझे, जब मैं स्पेसिफिक मेथड्स में ही कर रहा हूँ और डीएनए आरएनए प्रोब्स क्रिएट कर रहा हूँ, डीएनए एंड आरएनए प्रोब्स कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स का याद हम लोग को देखना पड़ता है कि क्या क्या इंट्रिंसिक फैक्टर, मतलब जी प्लस सी प्रॉपरली स्प्रेडेड है कि नहीं। ठीक है, आइडियली जी प्लस सी कंटेंट शुड बी 50%। ठीक है, आइडियली, बट इट वेरीज विद ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। नाउ देयर इज आल्सो सम एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जैसे बफर कंडीशंस, अगर लो सॉल्ट कंसंट्रेशन है या हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ये स्ट्रिंजेंसी का काम करता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल इफ ऑर्गेनिज्म कंटेन हाई जी प्लस सी कंटेंट, ठीक है,
तो जब 94 जैसे फॉर एग्जांपल 72 डिग्रीज में एग्जांपल दे रहा हूँ, 72 डिग्रीज में या 72 नहीं, इधर मैं बोलता हूँ 55 डिग्रीज में, 55 डिग्रीज में फॉर एग्जांपल ए एन टी जो है वो आपका ए एन टी बॉन्ड है वो टूट रहा है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल 72 डिग्रीज या 75 डिग्रीज में आपके जी एन सी बॉन्ड्स टूटना चालू होंगे, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 95 डिग्रीज जब मैं बोल रहा हूँ तो आपके पूरे के पूरे बॉन्ड्स ये होता है डी नेचर, ठीक है। 94 95, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है 94 95 डिग्रीज पे आपके डबल स्टैंडर्ड डी विल बी कन्वर्टेड टू सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। एंड 50-60% पे आपके डी टूट जाते हैं अबाउट दैट जीएनसी। तो ये स्ट्रिंजेंसी फैक्टर रहता है। अभी टेम्परेचर कितना मेंटेन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मुझे डी हाइब्रिड्स प्रोब्स यूज करना है, तो प्रोब क्या रहता है, प्रोब इज नथिंग बट डीएनए और आरएनए प्रोब्स यूज कर सकते हैं। एंड जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंगल स्टैंडर्ड ऑर्गेनिज्म है डीएनए, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और ऑर्गेनिज्म है, दिस कैन बी माय टारगेट टारगेट डीएनए, और इधर मैं प्रोब यूज कर सकता हूँ, ठीक है। प्रोब कैन बी प्रोब इज ऑफ नोन प्रोब इज नोन डीएनए, नोन सीक्वेंस ऑफ डीएनए, और मुझे पता है कि ये सीक्वेंस काफी स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल है, आप वाटर ले लो पॉन्ड का, ठीक है, पॉन्ड का वाटर ले लो एंड यू वांट टू ऑब्जर्व इफ दिस पॉन्ड कंसिस्ट ऑफ साल्मोनेला टाइफियम, ठीक है, सिंपल एकदम सिंपल, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, आप माइक्रोबायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यू विल ट्राई टू कल्चर इट, ठीक है। आपके पास ये है वाटर है, यू विल जस्ट आप क्या करोगे उसको आइसोलेट साल्मोनेला शिगेला अगर में डाल दोगे, या आपका में न्यूट्रेंट अगर में डालोगे बट वो स्पेसिफिक नहीं है, एंड मेकॉन्की में डाल दोगे कुछ स्पेसिफिसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो SSA अगर उसमें डालो एंड देन यू विल वेट फॉर अराउंड कितना डेज, 3 days, ठीक है। एंड बट थिंग इज कि जो आपके बायोकेमिकल मेथड्स है वो उतने स्पेसिफिक नहीं, ठीक है, एंड इट इज अनरिलायबल। सो बेस्ट अगर मुझे पता करना है एट स्पीशीज लेवल पे पता करना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रेन लेवल पे पता करना है, आई कैन यूज प्रोब्स, ठीक है। सो प्रोब्स कैन बी डीएनए और आरएनए। मैं क्या करूंगा, इसका पूरा कम्युनिटी डीएनए एक्सट्रैक्शन करूंगा। तो जो वाटर सैंपल रहेगा उसका पूरा का पूरा डीएनए निकालूंगा, जो भी ऑर्गेनिज्म है सबका डीएनए निकालूंगा। तो देयर वुड बी मेनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे रहेंगे, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये साल्मोनेला का है, फिर ये शिगेला का है, ठीक है, एंड फिर तुम्हारे पास ये इकोलाई का डीएनए है, ठीक है, कुछ एसोरियस हो सकते हैं, ठीक है। तो देयर कुड बी मल्टीपल्स ऑफ डीएनए, ठीक है, बहुत सारे बैसिलस भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड देन यू विल बी यूजिंग दिस प्रोब, ये प्रोब यूज करूंगा मैं, ठीक है। एंड इफ आई वांट टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर, जैसे मुझे साल्मोनेला टाइफी ढूंढना है कि जो वाटर सैंपल है उसमें साल्मोनेला टाइफी है क्या नहीं, साल्मोनेला टाइफी, पैराटाइफी भी कौन सा भी प्रोब ले सकता हूँ। एंड देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसमें जो प्रोब है, अगर प्रोब का ये फीचर है कि अगर मैं लो टेम्परेचर में लेके जाऊँ तो प्रोब क्या होता है, नॉन स्पेसिफिकली देखें, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग दिखा सकता है, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग। अगर मैं टेम्परेचर लो लेके जाऊंगा तो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हो सकता है। स्ट्रिंजेंसी टेम्परेचर के लिए मुझे पता होना चाहिए कि इफ यू नो अबाउट दैट TA वैल्यू क्या है, okay, what is TA value? Yes, सुना TA वैल्यू, कैन यू हेयर मी गाइस? एंड समझ में आ रहा है तो हाँ यस बोलो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे रिप्लाई करो नो, यार रिपीट बोल सकते, यस और नो, या रिपीट। स्टूडेंट्स पीछे सो रहे हो?
सर रिपीट। ओके, कौन सा रिपीट करना है वो बता दो। लोअर टेम्परेचर से जो बोला ना आपने, नॉन स्पेसिफिक। ओके ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, टी ए वैल्यू बता देता हूँ, ठीक है पहले। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे आप लोअर टेम्परेचर का स्ट्रिंजेंसी बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो ओके, व्हाट इज टी ए वैल्यू? टी ए इज नथिंग बट एनीलिंग टेम्परेचर। ओके, एनीलिंग टेम्परेचर, एनीलिंग मतलब क्या, री एनीलिंग। जब मैं प्रोब और मेरा टारगेट डीएनए को बाइंड कर रहा हूँ, तो वो कौन से टेम्परेचर में अच्छे से बाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम और स्पेसिफिकली कभी बाइंड कर सकते हैं। ओके, दिस डिपेंड्स ऑन टीएम वैल्यू। ये क्या होता है, टीएम वैल्यू इज नथिंग बट मेल्टिंग टेम्परेचर। कभी डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज टीएम वैल्यू, ठीक है। एंड इट इज तो टी ए टी एम तो सेम नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली इसको -5 डिग्रीज किया, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूँ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। ओके, एंड इफ आई से कि 60 डिग्रीज पे क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड टी है, तो 60 डिग्रीज पे क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग डबल डिग्रेडेड और डीनेचर, ठीक है। तो आपको 60 डिग्रीज पे 2 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिल जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली यू कैन डिटेक्ट यूजिंग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप। ओके, नेक्स्ट थिंग, अभी क्या होगा, 60 डिग्रीज पे अगर मैं इसको फिर टेम्परेचर रिड्यूस करता हूँ बाई 5 डिग्रीज, तो क्या होगा, 55 डिग्रीज हो गया। नो, दिस टेम्परेचर इज वेरी स्पेसिफिक, मतलब ये प्रोब के लिए स्पेसिफिक है कि ये एट दिस टेम्परेचर प्रोब कैन बाइंड टू, प्रोब विल बी बाइंडिंग टू दिस स्ट्रैंड एंड नॉट अदर स्ट्रैंड, ठीक है। समझ रहे, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को बाइंड करता है। अगर देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, 60 डिग्रीज है मेल्टिंग टेम्परेचर, इधर आ गया वैल्यू, एंड इसको अगर मैं 5 डिग्री से माइनस करता हूँ, तो दिस इज एनेलिंग टेम्परेचर। एनेलिंग में मतलब एनेलिंग टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक क्यों बोल रहा हूँ, जब सेम डीएनए को मैं डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करता हूँ एंड उसका 5 डिग्रीज नीचे लेके आता हूँ टेम्परेचर, लोअर करता हूँ टेम्परेचर। नाउ दिस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्वियसली, दे विल efficiently फॉर्म डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसको जैसे फॉर एग्जांपल ये 55 डिग्रीज की जगह मैं 56 डिग्रीज रखता हूँ, तो ये एफिशिएंट बाइंडिंग नहीं कर पाए, ठीक है। एफिशिएंटली वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में वापस कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, सो यू हैव टू लुक फॉर दैट। तो इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो हाउ कैन यू फाइंड टीएम वैल्यू? टीएम वैल्यू क्या, बहुत सिंपल है, आपको बेसिकली कंपोजिशन पता होना चाहिए, जी एन सी का कंपोजिशन पता होना चाहिए, ATGC का कंपोजिशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है 4G+C, ठीक है, +2 इंटू ANT, ठीक है, सिंपल वैल्यू। तो जितना जीसी के कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा उतना ज्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर रहेगा, और जितना ज्यादा ANT का वैल्यू रहेगा उतना कम मेल्टिंग टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देर इज 10 GNC, मतलब जी और सी मैं दोनों काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड 10 ANT, ठीक है, 20 हो गया। प्रोब्स के लिए ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10 का वैल्यू एग्जाम्पल, तो क्या इतना हो गया, 60 डिग्रीज हो गया, ठीक है, सिंपल 60 डिग्रीज हो गया आपका। एंड अगर मैं 60 डिग्रीज से -5 कर देता हूँ, तो 55 डिग्रीज में जो ये टेम्परेचर ये प्रोब है, इट विल efficiently bind to efficiently complement to its टारगेट डीएनए, ठीक है। समझे कि ऊपर से क्या, समझा। समझा सर। पक्का? सर सर
ओके, अभी जो ये कैलकुलेशंस है, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर योर इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोब्स। आप पीसीआर के लिए प्रोब डिजाइनिंग कर रहे हो या पीसीआर में प्रोब्स, तो प्रोब्स को क्या बोला जाता है? प्राइमर्स बोले जाते हैं। तो प्राइमर डिजाइनिंग में दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, प्राइमर डिजाइनिंग में। तो टी एम इज इक्वल टू 4G + C एन प्लस 2 ANT, ठीक है, वैसा। एंड फिर उसको उसमें आपको स्पेसिफिक टेम्परेचर, एनेलिंग टेम्परेचर ये रहता है, ठीक है। बट अब बोलोगे कि ये टेम्परेचर में क्यों रख रहे हैं? 55 से अगर नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 55 डिग्रीज नहीं रखता, 40 डिग्रीज रखता हूँ मेल्टिंग एनेलिंग टेम्परेचर इंस्टेड ऑफ 55, सेम डीएनए की बात करूँ, ठीक है। 55 से मैं 40 डिग्रीज पे लेके आता हूँ। तो 55 डिग्रीज में क्या हो रहा था? जो प्रोब है that has complementary sites, right, towards its target site। जो टारगेट डीएनए उसको कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। दिस प्रोब एट दिस टेम्परेचर कैन बाइंड टू दिस efficiently कॉम्प्लीमेंट्री है, बट एट लोअर टेम्परेचर, एनेलिंग टेम्परेचर से अगर हम लोग नीचे जाते हैं लोअर टेम्परेचर, तो जो प्रोब है इट इज इट कैन बाइंड टू नॉन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑल्सो। कैसे? कुछ ना कुछ डीएनए तो सिमिलर रहेगा, जी जी कॉमन, जी एंड सी कुछ कॉमन रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, तो इट विल बाइंड। और अगर एक दो डीएनए का या तीन चार डीएनए इफ दे डोंट कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो, तभी भी ये प्रोब उधर जाके बाइंड कर रही, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिकली अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को जाके बाइंड नहीं कर रहा है, ये नॉन स्पेसिफिकली दूसरे स्ट्रैंड को जाके बाइंड कर रहा है। तो टारगेट साइट को बाइंड नहीं कर रहा है, वो दूसरे साइट को बाइंड कर रहा है एट लोअर टेम्परेचर। तो ये फिनोमेना देखा गया, ठीक है। दैट्स वाई ये आता है इधर स्ट्रिंजेंसी, टेम्परेचर स्ट्रिंजेंसी। आप टेम्परेचर हाई रखो, मैक्सिमम टेम्परेचर रखो जिधर वो एनिलिंग दिखाता है, तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड को ही जाके बाइंड करेगा, ना कि नॉन स्पेसिफिकली दूसरे स्टैंड को जाके बाइंड करेगा, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा फिनोमेना देखा गया कि लोअर टेम्परेचर में जो प्रोब है इट विल बाइंड टू अनदर सीक्वेंस, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए हम लोग टेम्परेचर रखते हैं। अभी आप बोलोगे कि टेम्परेचर तो फॉर एग्जांपल इफ इफ कंपोजिशन पता नहीं है, ये नहीं पता, तो आप ऑब्वियसली यू आर डिजाइनिंग प्रोब्स, तो प्रोब्स के आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड अनदर थिंग यू कैन डू इज लाइक फॉर एग्जांपल आपने 56 डिग्रीज निकाला, तो उसमें भी काफ़ी आप चेंजेस देख सकते हो, 55.5 डिग्री से लेके ओके से 56.5 डिग्रीज ऐसा रख सकते हो। एंड ट्राई टू फाइंड कि जो इसमें वेरिएशन है उसमें उसमें भी 0.1 डिग्रीज के फर्क में भी आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इधर ग्रेडियंट पीसीआर यूज कर सकते हैं, ग्रेडियंट पीसीआर, ठीक है, या टच डाउन पीसीआर, या जो टच डाउन में बहुत अलग अलग रहता है। ग्रेडियंट में आप डिफरेंट, जैसे आपने देखा पीसीआर, देखा पीसीआर मशीन, पीसीआर मशीन देखा तुम लोगों ने? नो सर। यस, सो हाँ सर। मुझे, हाँ, अभी मुझे बताओ वो जो पैनल रहता है पीसीआर में, कैसे पीसीआर वर्क करता है? उसमें नीचे कॉइल्स रहते हैं, हीटिंग कॉइल्स रहते हैं क्या? यस, हाँ, बता सकते हो कोई? हेलो। इतना डिटेल नहीं पता सर, हाँ, सो ऊपर से देखा है। हाँ, बस बस ऊपर से देखा सब कुछ। तो तो ये देखो, इसमें इंजीनियरिंग प्रिंसिपल आता है, वो उसमें कॉइल्स नहीं रहता है, तो क्योंकि कॉइल है उसको ठंडा भी करना है, तो कॉइल्स ठंडा नहीं करते, ठीक है। तो उसमें एक इफेक्ट इफेक्ट या एक अलग से चिप बेस्ड रहता है, इसको फील्ड
पेल्टियर इफेक्ट बोलते हैं, पेल्टियर इफेक्ट। ठीक है, ये इतना स्पीड में काम करता है कि आपका हीटिंग 2 डिग्रीज पर सेकेंड के हिसाब से ये करता है। ठीक है, 2 डिग्रीज पर सेकेंड, 1 डिग्रीज से या 2 डिग्रीज पर सेकेंड हीट करता है, एंड 1 डिग्रीज से पर सेकेंड से कूल करता है। ठीक है, आपके ये कॉइल्स नॉर्मल कॉइल्स नहीं कर सकते, इधर आते हैं इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसको पेल्टियर इफेक्ट बोला जाता है। एंड पहले इसको पीसीआर को पेल्टियर मशीन बोला जाता है। ठीक है, पेल्टियर मशीन। ओके, क्योंकि उसमें वो वैसा रहता है, उसके ऊपर फिर आपके बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, तो जो आप पेल्टियर मशीन का खाली वो पीसीआर है, वो पेल्टियर मशीन से चलता है। अगर उसको कुछ डैमेज हो गया तो इट कॉस्ट अराउंड 80,000 to 2 lakhs डिपेंडिंग ऑन साइज। ठीक है, ओके। सो ये तुमको होपफुली इट इज क्लियर फ्रॉम माय साइड कि कैसे डीएनए बाइंड होता है, प्रोब्स कैसे बाइंड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसे जनरेट होता है, राइट? जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट। एंड प्रोब्स आर सिंगल स्टैंडर्ड इन नेचर, ये तो तुमको पता है, फॉर्म हाइब्रिड एप्लीकेशन तुम्हारे पीसीआर एंड ब्लॉटिंग टेक्निक्स में। ब्लॉटिंग टेक्निक्स आर बिट आउटडेटेड, अभी ज़्यादातर यूज नहीं होते, सदर्न ब्लॉटिंग एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। वैसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज हो जाता है, बट उसके कंपैरिजन में आई थिंक देयर आर सम टेक्निक्स। सो जो सदर्न ब्लॉटिंग एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज बीइंग लाइक आउटडेटेड, they are being replaced with much more um, efficient other methods. Obviously, but some blotting methods, जैसे western blotting है, it is being still used. Okay. Yeah, आगे चलते हैं। तो कुछ ब्लॉटिंग मेथड्स में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑब्वियसली जब हम लोग सदर्न एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, एंड देन फिर उसको ब्लॉट ये आपको स्टेप्स बताइए ब्लॉटिंग के, राइट? रेस्ट्रिक्शन इन डीएनए एक्सट्रैक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देन सेपरेशन एंजाइम, फिर ब्लॉटिंग मेथड, एंड देन फिर आपका ब्लॉटिंग के बाद आपके आ गया प्रोब बाइंडिंग। ठीक है, एंड देन डिटेक्शन। कौन आया भाई, जल्दी तो जाएंगे। ओके, सो या राइट नाउ इज इट क्लियर फ्रॉम माय साइड? ये आपको पता चल गया? आप लोग ने रिपीट रिपीट बोला था। यस, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, एंड तुमको अभी मैंने टेम्परेचर का बता दिया। सो देयर इज आल्सो बफर कंडीशंस के बारे में। तो बफर कंडीशन कैसे होता है, उसमें सॉल्ट, बेसिकली बफर क्या है, नथिंग बट सॉल्ट। ठीक है, एंड इट मेंटेन्स अ पर्टिकुलर पीएच। अगर पीएच का वेरिएशन रहेगा तो उसमें क्या होगा, आपका जो चार्जेस रहते हैं डीएनए में, ठीक है, डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड्स में, तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसमें फिर स्पीसीएशन, स्पीशीज फॉर्म होता है। तो फिर क्या होता है, वो अच्छे से आपके जो प्रोब के साथ प्रोब टू प्रोब बाइंडिंग में एफिशिएंसी रिड्यूस होती है। ओके, इसलिए आपको परफेक्ट कंडीशन, बफर कंडीशंस भी रखने पड़ते हैं। चले ना, प्रोब प्रिपरेशन कैसे होता है? जैसे आई थिंक मैंने पहले भी बताया, फॉस्फेटेज का यूसेज याद है, होपफुली याद है। तो जैसे अगर प्रोब तुमने बनाया, प्रोब 2 तरीके से बनाया जा सकता है कि आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करके नॉन डीएनए उसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करो, से कट करो, एंड देन जो डबल स्टैंडर्ड ईमेल है उसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दो। तो प्रोब प्रिपरेशन हो जाता है, उसमें आप खाली एक फॉस्फेट, जो 5' फॉस्फेट है उसको रिमूव करके रेडियो एक्टिव फॉस्फेट यूज कर सकते हो। एंड उसमें ऑब्वियसली अगर रेडियो एक्टिव फॉस्फेट यूज कर रहे हो तो उसको जोड़ने के लिए आपको काइनेज का एंजाइम का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, फॉस्फेटेज क्या कर रहा है, फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर रहा है, एंड काइनेज एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आप रेडियो एक्टिव फॉस्फेट यूज कर सकते हो, P32। ठीक है, ये आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एंड देन योर प्रोब विल बी लेबल। या ये तो नॉर्मल ऑर्गेनिक मेथड का। नेक्स्ट इज आप पूरा का पूरा प्रोब इंजीनियर कर सकते हैं,
आप ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब बना सकते हैं, सिंथेटिक प्रोब्स, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेटिक प्रोब्स। तो इसमें क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी न्यूक्लियोटाइड बीइंग इंसर्टेड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, आपके जो सीक्वेंस रिक्वायर्ड है, एंड देन ऑब्वियसली ऑल सीक्वेंसेस विल consist of p32, yeah, radioactive labeled radioactive isotopes use कर सकते हो p32, ठीक है। ओके, सो होपफुली दिस इज सिंपल। एंड लेबलिंग बोलते हैं उसको, एंड जो एंड्स रहते हैं 5 प्राइम फॉस्फेट रहता है उसको जाके बाइंड करेगा। आप इधर से फॉस्फेट, नॉर्मल फॉस्फेट निकाल दोगे और उसको रिप्लेस कर दोगे फिर p32 रेडियो एक्टिव लेबल फॉस्फेट। तो आपका ये क्या हो गया, एंड जो हो गया 5 प्राइम एंड हो गया वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड, ठीक है। जिधर भी ये प्रोब बाइंड करेगा उधर क्या होगा, ये रेडिएशन छोड़ेगा, एक रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिविटी एग्जिबिट करेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, निक ट्रांसलेशन हो गया या रैंडम प्राइमिंग हो सकता है। इसमें ये भी एक टाइप का प्रिपरेशन है, इसमें आपको क्लेनो फ्रैगमेंट यूज करना है। तो व्हाट इज क्लेनो फ्रैगमेंट, क्लेनो फ्रैगमेंट या क्लेनो डीएनए पॉलीमरेज, कौन सा है डीएनए पॉलीमरेज क्लेनो का, कोई बता सकते हैं? हेलो, सो अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, इट इज आई थिंक डीएनए पॉलीमरेज 1, बट प्लीज चेक। क्लेनो फ्रैगमेंट को डीएनए पॉलीमरेज 1 भी बोला जाता है, विदाउट इट्स आई थिंक आपका ये याद नहीं आ रहा। सो बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज में जो फिडेलिटी एक्टिविटी दिखाता है, आपका चेक करता है, उसको अगर उसको निकाल दिया जाए तो वो क्लेनो फ्रैगमेंट कन्वर्ट हो जाएगी, इट इज नोन एज क्लेनो। तो इसमें आप बीच में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करो एंड उसको उसमें आप जो न्यूक्लियोटाइड है वो जो न्यू न्यूक्लियोटाइड डालोगे उसमें फॉस्फेट ग्रुप रेडियो एक्टिव लेवल, उसमें आप डीएनए पॉलीमरेज यूज करोगे एंड इट विल ऐड दिस डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमराइज करेगा एंड वो ऑटोमेटिकली जो डीएनए रहेगा वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड रहेगा। सिंपल है, ये डीएनए इधर कट मारो आपने, ठीक है, एक दो डीएनए का कट मारो, ठीक है, ये तो एम्प्टी हो जाएगा एंड देन यू यूज दिस डीएनए पॉलीमरेज और आप जो न्यूक्लियोटाइड्स डालोगे वो p32 लेबल्ड रहेगा, मतलब रेडियो एक्टिव लेबल्ड रहेगा। आपके जो इधर फॉस्फेट है वो, जो न्यूक्लियोटाइड्स देंगे वो लेबल्ड रहेगा, सिंपल। एंड फिर उसको डबल स्टैंडर्ड से फिर सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दो, सिंपल। ओके, ओके, होपफुली इट इज अंडरस्टूड बाय यू, जैसे प्रूफ्स प्रिपरेशन होते हैं। यस, सो 20 स्टूडेंट्स आर देयर। यस, ये आया क्या, प्रणील आया क्या, इस प्रणील है आई थिंक। No, sir. ओके, नो प्रॉब्लम। Okay, next thing is okay, चलो आगे देखते। सो इसमें वन थिंग ये लिखा मेंशन किया हुआ है कि जो प्रूव्स है इट इज मेड, इट इज इंजीनियर्ड सच एज इट कैन अलाउ टू इट इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज ओवर लार्ज कंटेंट रेंज ऑफ जीसी कंटेंट, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया टेम्परेचर वेज, इसलिए स्ट्रिंजेंसी रखनी पड़ती है क्योंकि प्रूव्स जो जनरेट होते हैं इट कैन बाइंड टू it can bend randomly or it can bend specifically जो टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर, ठीक है। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा डिटेल्ड हो गया, इतना डिटेल में हम लोग को जाना नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो बफर यूज होता है उसको स्टैंडर्डाइज बफर या स्टैंडर्ड सोडियम सिट्रेट बफर भी हो सकता है।
ठीक है। एंड हाइब्रिडाइजेशन जो टिपिकली कैरी आउट होता है ये 45 से 65 डिग्रीज पे कैरी आउट होता है। ठीक है, जैसे मैंने पीसीआर में भी सेम चीज़ है, या आपको प्लॉटिंग मेथड में भी सेम चीज़, जिधर जिधर आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा या आपका हाइब्रिडाइजेशन आपने अगर ये सुना रहेगा। ओके, ये मेथड के बारे में सुना ही है? यस, सुना। ISH या FIS। ठीक है, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन या फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो इसमें भी हम लोग प्रोब्स यूज कर रहे हैं टू बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए। ओके, सो ओके, सो इसमें खाली प्रोटोकॉल्स के बारे में बता है इधर कि कैसे यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक जो टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर नहीं बोलूंगा मैं, मेम्ब्रेन बोलूंगा। ठीक है, तो मेम्ब्रेन में मैंने क्या किया, इधर मैंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर्टिकुलर स्पॉट्स पे डाल दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा इधर है। ठीक है, ये प्रोब है, फिर ये दूसरा प्रोब है। ठीक है, और ये मेरा तीसरा प्रोब। ठीक है, मैं एक 3 प्रोब्स के रिलेटेड बात कर रहा था। ओके, नाउ ये जैसे फॉर एग्जांपल मेरा डीएनए इज ऐसा। ठीक, तो जो प्रोब विल बी कॉम्प्लीमेंट टू दिस दिस प्रोब या दिस प्रोब या दिस प्रोब, उधर जाके वो कॉम्प्लीमेंट करके बाइंड करेगा। That's it. ठीक है, तो इधर मैं क्या करूँगा, ये मेम्ब्रेन में मैंने प्रोब्स उसको परमानेंटली अटैच कर दिया। एंड देन आई विल यूज अवर जो जैसे फॉर एग्जांपल पॉन्ड का सैंपल था, राइट, उसमें मैंने पूरा का पूरा डीएनए एक्सट्रैक्शन कर दिया। उसको कम्युनिटी डीएनए एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके पूरे के पूरे डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो उसको कम्युनिटी डीएनए एक्सट्रैक्शन। ओके, एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैंने जो मेम्ब्रेन है एक डब्बे में रखा। ठीक है, बॉक्स में। एंड जो डीएनए है उसको डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके, राइट, क्योंकि ये भी सिंगल स्टैंडर्ड है, ये भी आपका टारगेट भी सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए, तब जाके बाइंडिंग होगा। राइट, एक बार डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गए, सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गए, बॉक्स में डाल के आपको उसको ओवरनाइट हाइब्रिडाइजेशन के लिए रखना है। तो जितना टाइम हाइब्रिडाइजेशन के लिए रखोगे उतना मैक्सिमम मैक्सिमम जो एफिशिएंसी दिखेगी आपको। ठीक है, अब अगर आप 1 मिनट में डाल के निकालते हो, सब पूरा धो देते हो, तो आपका कोई भी प्रोब जाके बाइंड या आपका जो टारगेट डीएनए वो बाइंड नहीं होगा। ठीक है, सो ओवरनाइट हाइब्रिडाइजेशन के लिए रखा जाता है 16 to 18 आवर्स। ठीक है, ताकि मैक्सिमम प्रोब टू टारगेट हाइब्रिडाइजेशन या बाइंडिंग हो सके। ठीक है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में बाइंडिंग होता है। ओके, आगे चलते हैं। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो रिएक्शन होता है, वो स्टोकेस्टिक होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टोकेस्टिक? यस, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोकेस्टिक? सिंपल है, स्टोकेस्टिक इज टेक्निकल वर्ड फॉर रैंडम। ठीक, रैंडम। तो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, काफी रैंडम प्रोसेस है। अगर फॉर एग्जांपल आपके प्रोब्स भी ज्यादा है और टारगेट डीएनए भी ज्यादा है तो काफी अच्छा बाइंडिंग होगा। बट आपका प्रोब्स भी कम है और आपका टारगेट डीएनए भी काफी कम है, तो उधर क्या हो जाएगा, बाइंडिंग होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए 18 आवर्स रखा जाता है और उसको शेकिंग कंडीशंस में रखे जाते हैं, ताकि इवनली पूरा का पूरा जो आपका टारगेट डीएनए वो फैल जाए और सारे प्रोब्स, होपफुली सारे प्रोब्स को टच करके निकलेगा कहीं ना कहीं बाइंडिंग विल टेक। ठीक है, right, so more copies of sequence, the greater the chance of given probe being finding to or encountering its complementary sequence। ठीक है, ये सिंपल है। उसके बाद आप एक बार आपने जैसे ओवरनाइट इसके लिए रखा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए रखा, नेक्स्ट यू हैव टू गो फॉर वॉशिंग। और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो प्रोब्स है वो आपके या डीएनए है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ जैसे मतलब इधर कहीं भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब्स अवेलेबल नहीं है, तो डीएनए क्या होगा, इधर जाके बाइंड, ये जो मेम्ब्रेन है उधर जाके चिपक जाएगा। ठीक है, इधर जाके चिपक जाएगा। ठीक है, प्रोब को बाइंड नहीं करेगा क्योंकि टेम्परेचर हम लोग ने स्ट्रिंजेंसी रखा है या सॉल्ट कंडीशन स्ट्रिंजेंट रखा है। ठीक है,
ओके, सो नेक्स्ट थिंग आपको क्या होगा कि आप जब आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन यू हैव टू गो फॉर वॉशिंग। ठीक है, ठीक है। तो वॉशिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग? ओके, जैसे एकदम सिंपल एनालॉजी देता हूँ। आपने खाना खाया, ठीक है, आपने प्लेट ठीक से वॉश नहीं किया, तो आप वही प्लेट में वापस खाना नहीं खा पाओगे, राइट? सेम थिंग, आपको गंदा फिर आपको रिजल्ट्स, आपको बीमारी हो सकती है। सेम थिंग, अगर मुझे अच्छे रिजल्ट चाहिए, अच्छा से रिजल्ट चाहिए, तो मैं वॉशिंग अच्छे से कैरी आउट करूँगा। तो आपका जो ये अनवांटेड डीएनए जो मेम्ब्रेन में बाइंड हुआ है, उसको आप निकालोगे, ठीक है। और वो कैसे होगा? वॉशिंग से। अभी वॉशिंग बोला तो मतलब उधर साबुन वाबुन डिटर्जेंट नहीं डालना, बट यू हैव टू यूज बफर्स, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो अनवांटेड डीएनए जो बाइंड हुआ है और मेरे को फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं, तो उसको मैं वॉशिंग से अच्छे तरीके से निकाल सकता हूँ। एंड वॉशिंग ऐसा नहीं कि वन टाइम होगा तो दैट इज डन। आप 2x 3x टाइप वॉशिंग करो। तो ज़्यादा भी वॉशिंग नहीं करोगे, ताकि हमारा जो जो टारगेट है वो निकल जाए, एंड कम भी नहीं करोगे ताकि ये सारे कंटामिनेशन रहे। सो 3 times वॉशिंग इज आई थिंक मैक्स इनफ। ठीक है, ठीक है। तो इधर भी स्ट्रिंजेंसी होनी चाहिए वॉशिंग के लिए, और स्ट्रिंजेंसी कंडीशंस में हाई टेम्परेचर में वॉशिंग कर सकते हो, एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायंस रख सकते हो। ओके, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायंस या सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है? ये लेस शील्ड करते हैं नेगेटिव फॉस्फेट ग्रुप्स को, एंड विच इन टर्न इनहिबिट्स स्ट्रैंड एनीलिंग। तो अगर मैंने वॉशिंग करते वक्त मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट लो रखना, ठीक है, लो रखना है, ताकि जो डीएनए है वो कोई भी दूसरे स्ट्रैंड को बाइंड ना करे। ठीक है, सो होपफुली दिस इज क्लियर। यस, या कुछ रिपीट करना है? ऊपर से जा रहा है? हेलो Yes. स्टूडेंट, रिपीट चाहिए? एनीबडी वांट रिपीट, और शुड आई मूव अहेड? ओके, देयर इज नो रिस्पॉन्स, सो मुझे पता नहीं चलेगा यस है कि नो है या रिपीट करना है। सर थोड़ा बाउंसिंग जा रहा है, बट पीपीटी बाद में आप सेंड करेंगे, हम लोग पढ़ने के बाद समझ जाएगा। ओके, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। देखो, एक तो आप स्ट्रिंजेंसी फैक्टर वॉशिंग में रख रहे हो, राइट? तो वॉशिंग से आपको जो जो नॉन एसेंशियल डीएनए है, जो आपका टारगेट डीएनए नहीं है, वो भी मेम्ब्रेन में जाके बाइंड कर लेता है। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कितने घंटे के लिए चल रहा है? 16 to 18 आवर्स के लिए चल रहा है, ठीक है। तो जो डीएनए है हमारा, टारगेट डीएनए तो प्रोब को बाइंड करेगा, बट जो दूसरे डीएनए, ठीक है, नॉन टारगेट डीएनए, वो क्या होता है, मेम्ब्रेन को बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन को बाइंड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोब्स, क्योंकि इधर प्रोब क्या स्पेसिफिक है और मैंने हम लोग ने स्ट्रिंजेंसी कंडीशंस रखी, राइट? तो ये क्या आपको ये सारे डीएनए को हटाना पड़ेगा। तो ये डीएनए हटाने के लिए हम लोग के वॉशिंग कंडीशंस रख रहे हैं। तो वॉशिंग कंडीशन भी हम लोग स्ट्रिंजेंट कंडीशंस में। तो वॉशिंग में क्या होता है, आप 3 टाइम्स वॉश कर सकते हैं। और वॉशिंग कंडीशन हम के में क्या हो रहा है, हम लोग टेम्परेचर थोड़ा हाई रख रहे हैं, एनेलिंग टेम्परेचर से थोड़ा हाई रख रहे हैं, ठीक है, एनेलिंग टेम्परेचर से थोड़ा सा हाई रख रहे हैं, ठीक है, नियर मेल्टिंग टेम्परेचर। याद रखो, मेल्टिंग टेम्परेचर और एनेलिंग टेम्परेचर होता है। अभी इसमें क्या बोल रहे हैं, एक तो हम लोग टेम्परेचर हाई रख रहे हैं, तो क्या होगा, जो डीएनए वो जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वही बाइंड होगा, बाकी सारे डीएनए बाइंड नहीं होंगे, ठीक है। एंड हम लोग इधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायंस है। अब इसका मेन फैक्टर क्या है? अभी ऐसा बोला जाता है कि मेम्ब्रेन कुछ ना कोई चार्जेस रहते हैं, ठीक है उसमें। तो आपका जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो हो सकता है ये इसको बाइंड कर रहा हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, इधर आप लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इधर नेगेटिवली बाइंडेड नेगेटिव जो फॉस्फेट्स है, जो फ्री डीएनए, वो जो कैटायंस है इसको जाके बाइंड कर रहे हैं, ठीक है।
फॉस्फेट को जाके बाइंड करता है। अभी इससे क्या होगा, इसकी जो डीएनए है इधर जो चिपका हुआ भी है, उसमें जो वो फॉस्फेट को कवर कर देगा, फॉस्फेट ग्रुप्स को कवर कर देगा। इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये जो डीएनए है वो निकल जाएगा बाहर, और जो फ्री डीएनए है जो इधर बाइंड करने की कोशिश कर रहा है वो भी बाइंडिंग नहीं होगा, ये जो नॉन स्पेसिफिक डीएनए वो निकल जाएगा। ओके, तो एनेलिंग, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ये प्रिवेंट करता है एनेलिंग, एनेलिंग नॉन स्पेसिफिक एनेलिंग को रिमूव करता है, इनहिबिट करता है। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। Yes, sir. बाकी लोग यस सर। बस दो ही यस बोलते हैं, बाकी पीछे सो रहे शायद। ठीक है, एकदम सिंपल वर्डिंग्स में समझा रहा हूँ तो ताकि सबको पता चले। ओके, नेक्स्ट थिंग। ओके, सो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अभी कभी कभी कोई एक्सपेरिमेंट्स में मुझे स्ट्रिंजेंसी कम रखनी पड़ती है, मुझे अपने गार्ड्स को डाउन करना पड़ेगा, लोअर स्ट्रिंजेंसी रखनी पड़ेगी। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू हाइब्रिडाइज नॉट बिटवीन सेम स्पीशीज और सेम एक प्रोब और उसका टारगेट डीएनए, इफ आई वांट टू हाइब्रिडाइज डीएनए, जैसे क्रोमोसोम ऑफ फॉर एग्जांपल मंकी का क्रोमोसोम एंड ह्यूमन का क्रोमोसोम, ठीक है, देयर इज सटल डिफरेंसेस, ठीक है। या मैं इधर बोल सकता हूँ माउस का क्रोमोसोम, ठीक है, ठीक है, एंड आई वांट टू डिटरमाइन कि हाउ मच परसेंटेज इज सेम, तो इधर मुझे स्ट्रिंजेंसी कम रखनी पड़ेगी। अगर स्ट्रिंजेंसी कम नहीं रखी तो मेरे को हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखेगी, ठीक है, ठीक है। तो इसमें इसको सेम चीज यूज कर सकता हूँ। तो इससे मुझे पता चलता है कि कितना परसेंट ऑफ डीएनए इज सिमिलर बिटवीन ह्यूमंस, माउस एंड monkeys। ये बहुत सारे स्पीशीज है। तो वी एक्चुअली कंपेयर दिस, ये हम लोग एक्सपेरिमेंट रन करते हैं क्योंकि हम लोग को पता चल जाता है कि कितना परसेंट डीएनए सिमिलर विद अदर। तो अगर सिमिलर डीएनए है तो दीज अदर एनिमल्स कैन बी यूज एज अ मॉडल्स, ठीक है। माउस मॉडल जैसे फॉर एग्जांपल है, तो माउस एंड ह्यूमंस में अप्रोक्सीमेटली 98% का सिमिलरिटी है, ठीक है, यूजिंग दिस मेथड। ओके, तो मतलब क्या है कि उसमें भी सेम जीन्स है, राइट, सिमिलर जीन्स है उधर, सेम नहीं सिमिलर बोलूंगा। तो सिमिलर जीन्स आर प्रेजेंट इन माउस, सिमिलर जीन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो अगर मैं माउस में वो जीन्स में चेंजेस या म्यूटेशन या कैरी आउट करता हूँ, एंड इफ आई ऑब्जर्व सम फिनोटाइप चेंजेस एंड या कैंसर फॉर्मेशन में अगर दिखता है, तो आई कैन प्रिडिक्ट कि अगर ह्यूमंस में अगर ये जीन्स में अगर चेंजेस आए तो इधर इसको भी म्यूटेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, या पर्टिकुलर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक। तो ये होता है इधर हम लोग ये एक्सपेरिमेंट में वी हैव टू लोअर द स्ट्रिंजेंसी, ठीक है। अभी जो आफ्टर आफ्टर वॉशिंग जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डिटेक्शन, एंड डिटेक्शन इज बाय ऑटो रेडियोग्राफी, क्योंकि हम लोगों ने वी आर यूजिंग रेडियो एक्टिव लेवल प्रोब्स, ठीक है, रेडियो एक्टिव लेवल प्रोब से हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, तो प्रोब्स के लिए हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी यूज करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी में एक टाइप का एक्सरे फिल्म रहता है, ओके। सेम फिल्म वाज प्रेजेंट इन आपके फोटोग्राफ। एक ओके, सो if you know about old for cameras wherein आपको एक पर्टिकुलर फोटोग्राफिक फिल्म डालते थे, आपको अगर याद रहेगा तो, या अगर रहेगा तो इट वाज प्री 2005, 2000 से पहले जितने भी फोटोज जनरेट होते थे, तो इट वाज यूजिंग दिस फोटोग्राफिक फिल्म,
ओके, दिस फोटोग्राफ्स आर नथिंग, उसमें होता क्या, केमिकल्स कौन से होते हैं? इट इज नथिंग बट सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हैलाइड है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ in expo when it is exposed to radioactive isotopes, जो उसमें बीटा अल्फा बीटा रेस निकलते हैं, तो ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअली, एलिमेंटल सिल्वर। ओके, सो अभी ये जो चेंजेस हुआ सिल्वर हैलाइड से सिल्वर में, सिल्वर एटम जो भी, ये क्या करता है, जो फोटोग्राफिक इमल्शन है, जिधर भी ये कन्वर्जन हुआ है, तो आपको उधर आपको ब्लैक स्पॉट्स मिलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डीएनए है, डीएनए के बैंड्स हैं, तो मुझे करस्पॉन्डिंग अगर उधर रेडियो एक्टिव एसिड बाइंड हुआ है, तो इट विल उधर पूरा आपका जो ब्लैक कलर का एक परफेक्ट बैंड, ठीक है। एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वो वेयर एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया इन 1950 से लेके 1980s तक करीबन करीबन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इन कंपैरिजन टू अगर तुम लोग एंजाइम यूज करते हो तो एंजाइम की सेंसिटिविटी इज बिट लेस, ओके। एंड आपका दूसरे मेथड्स भी है, उसकी उसकी भी सेंसिटिविटी काफ़ी कम, ठीक है। तो जो आपके आपके जो साइक्लिक पाथवेज है, इंक्लूडिंग C3 पाथवे एंड ये आपके बाकी सारे पाथवेज है, इट वाज जो जब डिटेक्ट हुए थे दे यूज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो होपफुली अभी तुमको पता लगा रहेगा एक्सरे फिल्म क्या होता है। एक्सरे फिल्म इज नथिंग बट इट इज कोटेड विद सिल्वर हैलाइड, और वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, उधर आपको ब्लैक स्पॉट्स मिलते हैं। एंड ब्लैक स्पॉट्स ये डिटरमाइन करता है कि आपका जो रीजन है, ये रीजन है, इट इज एग्जिबिटिंग रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरे फिल्म को। Yes, sir. यस, होपफुली इट इज क्लियर फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I think there are 18 students right now, 22 से 18 हो गए। ओके, आगे चलते हैं। या सो इंस्टेड हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, इसमें एक फॉस्फर इमेजिंग स्क्रीन भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या करता है, इनहैंस कर देता है आपका, ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है एंड फास्टर देन एक्सरे फिल्म हो जाता है, ठीक है। इसमें फॉस्फर का लेयर रहता है। एंड यस दीपाली बोलो। यस दीपाली। Yes, sir. यस बोलो। क्या क्वेश्चन रिपीट करो। हम क्वेश्चन है कुछ पूछो। यू हैव रेज्ड योर हैंड। नहीं सर, वो बाय मिस्टेकली हो गया। हाँ हाँ, मस्ती कर रहे हो पिछले। नहीं सर, वो म्यूट करने वाली थी ना, तो उस पे म्यूट का बटन लेफ्ट साइड में होता है, रेज हैंड का राइट साइड में। सर वो स्वाइप होता है जल्दी। हाँ 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 हाँ, ओके ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इधर फॉस्फर केमिकल यूज किया जाता है, लेयर्ड स्क्रीन रहते हैं एंड इसकी वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, तो लाइक आप चेक कर सकते हैं। बट क्या है, इट इज़ मोर सेंसिटिव एंड फास्टर देन एक्सरे फिल्म, बट ये लो रेजोल्यूशन देता है। तो आपका जो अब बेसिक अगर एक्सरे फिल्म यूज कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन देता है, बट फॉस्फर इमेजिंग फास्ट है, सेंसिटिव है, बट लोअर रेजोल्यूशन, तो ये फर्क है दोनों में, ठीक है। और एक सिंपल मॉडिफिकेशन है ऑटो रेडियोग्राफी का, और उससे हम लोग इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन में फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ पॉन्ड वाटर का। एंड पॉन्ड वाटर कंसिस्ट ऑफ, जैसे मैंने पहले बताया, साल्मोनेला, शिगेला, ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। एंड यू वांट टू डिटरमाइन कि आपको साल्मोनेला भी डिटरमाइन करना है, जैसे एक वन गो में मुझे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिटरमाइन करना है, तो मैं साल्मोनेला, शिगेला, ये प्रूव्स यूज करूंगा।
एंड इंस्टेड ऑफ तो मैं इधर क्या कर सकता हूँ, एक को फॉस्फेट P32 लेबल कर सकता हूँ, एक को H लेबल कर सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं इंडिविजुअल लेबल करने जाऊँगा तो ये P32 सबको P32 लेबल करूँगा तो सब मुझे सेम ही रिजल्ट मिलेगा। आई कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन साल्मोनेला शिगेला या विब्रियो कॉलरे प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो मेरे को रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले, मतलब आई विल गेट रिजल्ट बट उसको मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा कि कौन सा साल्मोनेला कौन सा शिगेला, ठीक है। मैं वापस बता रहा हूँ, आई कैन यूज मल्टीपल प्रोब्स और सिंगल प्रोब ऑल्सो, and I can label it with P32 single probe or all the probe, but all अगर मैं सारे probes को P32 लेबल करूंगा तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि कौन से probe ने बाइंड किया। तो in this case I can use P32 लेबल probe and मैंने उसको वाटर सैंपल में डायरेक्ट डाल दिया, उसको मिक्स करूंगा एंड देन या DNA एक्सट्रैक्ट करके इधर से इधर लेके आऊंगा एंड प्रोब से बाइंड करूंगा। तो जिधर मेरा डीए अगर फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट ऑर्गेनिज्म है जैसे साल्मोनेला टाइप उसको बाइंड करेगा एंड देन it will exhibit radiation. Okay, so this is gel. For example, this is gel और इधर मेरे प्रोब्स बाइंड हो चुके हैं, ठीक है। यह मेरा रेडियो एक्टिव लेबल्ड जो टारगेट है वो इधर है, ठीक है। और जब मैं उसका नेगेटिव निकालूंगा, नेगेटिव निकलना नथिंग बट ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। उसको जो ये इससे एक्सरे फिल्म रखूंगा इसके ऊपर, डायरेक्ट कांटेक्ट में रखूंगा एंड टाइम इज मेन फैक्टर। मैं सेकेंड्स में मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। सेकेंड 10 सेकेंड एक्सपोजर, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट एक्सपोजर, 120 सेकेंड एक्सपोजर, ठीक है। 180 डिग्री 180 सेकेंड एक्सपोजर, ऐसा मैं टाइम मेंशन कर सकता हूँ। तो सेकेंड ऑफ एक्सपोजर में आई कैन डिटरमाइन की कितना क्वांटिटी, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी निकाल सकते हैं, क्वांटिटी कि कितने बहुत सारे प्रोब्स बाइंड हुए कि कम प्रोब्स बाइंड हुए, तो मैं क्वांटिटी निकाल सकता हूँ। ओके, तो सेकेंड टाइम ऑफ एक्सपोजर एंड आई कैन डिटेक्ट क्वांटिटी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर 30 सेकेंड्स में फॉर एग्जांपल अगर ये बहुत लाइट रहता है, बहुत लाइट है, तो जो क्वांटिटी ऑफ टारगेट है वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू अदर्स। And I have already uploaded this presentation, so you can see. Okay, so for example, if you go for a probe and this is unlabeled, ठीक है, आप उसको फ्लोरेसेंट डाई से लेबल कर सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव जो प्रोब्स है वो काफी सेंसिटिव है, बट थिंग इज कि ऑब्वियसली आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन यू हैव टू डिस्कार्ड इट, ठीक है। वो प्रोब्स आप यूज नहीं कर पाओगे जो आपने एक बार यूज कर लिया, मतलब ये बैंड्स हो गए, तो ये बैंड्स आपने इल्यूट कर सकते हो, इल्यूट तो नहीं कर सकते रेडियो एक्टिव है, तो आपको इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो डिस्कार्डिंग के लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव आपको वेस्टेज में ही डालना पड़ेगा। आप ऐसे कहीं भी आप पानी में नहीं डाल सकते क्योंकि उधर आपका रेडिएशन फैल जाएंगे, म्यूटेशन इवेंट होना चाहिए, ठीक है। और वो सोर्स ऑफ वाटर अगर ड्रिंक के पोर्टेबल मतलब एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है या वाटरिंग पर्पज के लिए यूज हो रहा है, तो वो वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो एरिया है इट विल बी रेडिएटिंग, ठीक है। सो इंस्टेड वी कैन यूज फ्लोरेसेंट डाइस, बेस्ट अल्टरनेटिव्स है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव मैं ल्यूमिनेसेंट डाई भी यूज ल्यूमिनेसेंस यूज मैं इधर इंस्टेड ऑफ फ्लोरेसेंट आई कैन कोवेलेंटली बाउंडेड विद एंजाइम, बट मैंने अब जैसे बताया जो एंजाइम है उसकी सेंसिटिविटी काफी कम है, एफिशिएंसी काफी कम है। फ्लोरेसेंट डाई की अप्रोक्सीमेटली उतना सेंसिटिव है जितना, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसको मेल्ट किया, ठीक है, टारगेट वाले को, एंड प्रोब को इधर ये ऑटोमेटिकली इधर बाइंड हो गया, तो अब मुझे इधर से फ्लोरेसेंस पता चल गया। ओके, तो जो फिश है वो आई थिंक जर्मन ना याद नहीं। ओके, सो
तो फ्लोरेसेंस में अभी मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, फ्लोरेसेंस डाइज आपको बहुत सारे कलर वेराइटी में मिल सकते हैं। तो एट अ टाइम अगर मुझे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एट अ टाइम मुझे डिटेक्ट करना है तो आई कैन यूज़ मल्टीपल डाइज। तो हर एक जो प्रोब रहेगा, डिफरेंट प्रोब रहेगा, उसको मैं मल्टीपल डाइज, जैसे सी सायान हो गया आपका, येलो फ्लोरेसेंट प्रोटीन हो गया, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन हो गया, ठीक है, या बहुत सारे दूसरे कलर है, वैरायटी ऑफ कलर्स। तो मैं सारे प्रोब्स को एक साथ डाल सकता हूँ एंड आई कैन डिटेक्ट इफ कौन सा प्रोब प्रोब एग्जिबिट कर रहा है फ्लोरेसेंस, ठीक है। ऑब्वियसली आई कैन नॉट सी विद नेकेड आइज, तो इसके लिए मुझे लेजर डिटेक्शन मेथड यूज करना है, ठीक है, लेजर। ठीक है, तो लेजर डिटेक्शन मेथड इज क्वाइट सेंसिटिव एंड जितना हम लोग के नॉर्मल आई से भी डिटेक्ट नहीं होता वो लेजर डिटेक्शन लेजर से डिटेक्ट। तो जो इनसिटू हाइब्रिडाइजेशन है, इनसिटू मतलब ऑन द साइड हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें ओरिजिनली पहले ये वाले इंसिटू बोला ना, फ्लोरेसेंस नहीं बोला। तो इधर ओरिजिनली रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन यूज हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिटियम है, ट्रिटियम है ये। यस, इज इट ट्रिटियम? हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? क्या सो गए तुम? Yeah, there, sir. You are there, but are you sleeping? No, sir. ओके। तो जो इंसिटू हाइब्रिडाइजेशन है वो मैं डायरेक्टली एट ए पर्टिकुलर साइट यूज कर सकता हूँ। ऑब्वियसली आई कैन नॉट यूज दिस मेथड अभी रेडियो एक्टिव डायरेक्ट एनवायरनमेंट में यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि प्रॉब्लमेटिक। टारगेट किधर लोकेटेड है वो पता लगाने के लिए गोल वही है कि मेरे को टारगेट पता लगा। ओके, तो इंसिटू में मैं डायरेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा सेल यूज कर रहा हूँ विदाउट एक्सट्रैक्टिंग इट्स डीएनए, ठीक है। मल्टीपल सेल्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वन सैंपल हो गया, उसको मैंने एक स्लाइड में रखा है एंड उसमें सारे प्रोब्स डाल दिए, ठीक है। ISH प्रोब्स रख, फॉर एग्जांपल H3 प्रोब्स, ठीक है। ओके, सो H3 प्रोब्स इज नथिंग बट प्रोब्स लेबल्ड विद ट्रिटियम, ठीक है। और मैंने फिर उसको अंडर माइक्रोस्कोप डिटेक्ट करा। ऑब्वियसली दिस विल बी ये रेडियो एक्टिव है, तो ऑब्वियसली मुझे सारे प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद आई कैन यूज फोटोग्राफिक इमल्शन एंड जैसे मैंने बताया था एक्सरे फिल्म या फोटोग्राफिक इमल्शन सेम प्रिंसिपल में काम करता है, ठीक है। एंड मैं उसको कवर करूंगा एंड देन आई कैन फॉर एंड कितने टाइम का एक्सपोजर है वो डिसाइड कर सकता हूँ, 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 120 सेकेंड्स, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो इमल्शन एक बार डेवलप हो गया और विजिबल लाइट में मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ उसको, ठीक है। और वो इधर भी होता है, वो जैसे मैंने बताया ये जो सिल्वर हाईलाइट है इज कन्वर्टेड इनटू सिल्वर, ठीक है। और वो ब्लैक कलर हो जाता है, ब्लैक कलर डेवलप होता है एंड एक्सरे या इमल्शन ये ब्लैक हो जाता है, ओके। अभी H3 का जो है वो जो फंडा है वो आपका क्या है, डेवलपमेंट टाइम टेक्स कैन बी वीक्स टू मंथ्स। तो ये क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि क्या है, लेस एनर्जेटिक रेडिएशन, एनर्जेटिक रेडिएशन जो रेडिएशन है वो स्लो स्लो पास ऑन कर, तो मुझे वीक और या मंथ्स तक जा सकते हैं डिटेक्शन में। तो मैं ऑब्वियसली आई विल अवॉइड यूजिंग दिस मेथड, क्योंकि एक तो आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है एंड आपका ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव चीज़ है, तो आप यू कैन नॉट यूज इट एंड डिस्पोज इट इजीली।
तो आई कैन यूज फ्लोरेसेंट टैग्स। एंड इसका लॉन्गर हाफ लाइफ है, मतलब और भी बढ़, ठीक है, डिस्पोज करना भी मुश्किल हो जाएगा। होपफुली तुमको पता है कि कैसे डिस्पोज होता है रेडिएक्टिव वेस्ट? यस, नो सर, आइडिया नहीं है। बाकी लोग, यस ऋतिका, प्रनिल, ये पता है कि उसको सेग्रीगेट करते हैं, पर डिस्पोजल नहीं पता है। ओके। तो डिस्पोजल के लिए हम लोग वी कैन नॉट इंसिनरेट राइट दिस रेडिएक्टिव, राइट? तो हम लोग मतलब जो अथॉरिटीज है वो क्या करते हैं, जो जो भी जितना भी रेडियोएक्टिव सामान है उसको बैरल्स में डालते हैं, ठीक है, बैरल्स में इकट्ठा करते हैं। एंड दीज बैरल्स, जो कि आई थिंक लैक्स या करोड़ में होंगे अभी, तो इसको अर्थ के नीचे एक जैसे सुरंग रहता है, उसमें जाके जमा करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव। उधर रेडिएशंस होते रहेंगे, वो पूरा का पूरा रेडिएशन अर्थ के नीचे, मतलब जैसे पहाड़ी के नीचे डाल दिया, तो ये डिस्पोजल, दिस इज नथिंग बट रेडियोएक्टिव डिस्पोजल। और अगर उधर देखा जाता है कि वाटर सोर्स आजू बाजू ना हो, क्योंकि अगर वाटर सोर्स रहा और इधर फॉर एग्जाम्पल सीपेज हुआ तो वो वाटर सोर्स में चला जाएगा। ओके, ठीक है। तो तब बट सॉइल सीपेज भी सुना है मैंने, सॉइल मतलब ये आपका रेडियोएक्टिव है तो कभी कभी सीप हो सकता है, एंड दिस विल कंटामिनेट दिस एरिया फुल एरिया, ये पूरा का पूरा रेडियोएक्टिव एरिया। तो नॉर्मल पर्सन लाइक मी एंड यू कैन नॉट गो देयर, ठीक है, इट्स स्ट्रिक्टली मेंटेन। ओके, सो दिस इज डिस्पोजेबल डिस्पोजल। रेडियोएक्टिव कभी भी आप इसको इंसिनरेट नहीं कर सकते, या वो नॉर्मली वाटर में नहीं बन सकते, ये कचरे में नहीं डाल सकते। Okay, so there were some incidents in BRC where they found a radioactive in some gardens. मतलब कोई कोई employees, I don't know, ये कुछ हुआ था, तो employees were found with some kind of radioactive material and uh, they were lying behind beside, मतलब हो सकता है actual death हुआ रहेगा, या they were suffering from some, या हो सकता है बेहोश पड़े। तो काफी केसेस हुए, एंड बीआरसी में काफी सारे साइंटिस्ट भी ऐसे क्या बोलते हैं अननेचुरल डेथ भी हुए। ठीक है, चलो आगे। ओके, सो वी कैन यूज ऑब्वियसली यूज नॉन रेडियोएक्टिव अल्टरनेटिव्स, कैलोरीमेट्रिक और फ्लोरेसेंस। ये कैलोरीमेट्रिक मतलब आपका एंजाइम, ठीक है, इधर एंजाइम की बात, एंजाइम टैग, तो इसको टैग्स बोला जाता है, ठीक है। तो रेडियोएक्टिव टैग्स बोल सकते हैं, फ्लोरेसेंट टैग्स बोल सकते हैं, एंजाइम टैग्स बोल सकते हैं, या ल्यूमिनेसेंट टैग्स। सिंपल, एकदम सिंपल। ओके, ठीक है, डीजी ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ये टाइप का प्रोब है एंजाइम, और जिधर ये रहेगा उधर फिर आप उसको कैलोरीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर उसका रिएक्शन भी बता सकते, तो आप यू कैन रीड। एडवांटेज क्या है ये नॉन रेडियोएक्टिव अल्टरनेटिव्स का, जैसे इधर इधर वीक्स टू मंथ्स लग रहा था डेवलपमेंट के लिए, इधर ये इन अ सिंगल डे आप पता लगा सकते हैं, कैरी आउट करके एक वन डे में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी, बट डिसएडवांटेज क्या है, इट इज लेस देन रेडियोएक्टिव। ऑब्वियसली कोई ना कोई एडवांटेज रहता है, कोई ना कोई डिसएडवांटेज। फिश जो है ये भी काफी ल्यूक्रेटिव है, इसमें फ्लोरेसेंट डाई यूज किए जाते हैं, मल्टीपल फ्लोरोफोर्स यूज किए जाते हैं, और उसमें आप कितना क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर प्रोब डाल रहे हैं, तो उससे आप काफी सारे वेरिएशन निकाल सकते हैं। जैसे आप अभी अभी स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन देख रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन हो सकता है, या आप
लैपटॉप में देखें। तो ये स्क्रीन में जो है, आप क्या करो, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। यू ऑब्जर्व दिस स्क्रीन अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करो, आपको पता चलेगा देयर इज नथिंग बट थ्री कलर्स, रेड, ब्लू एंड येलो। इनमें खाली इंटेंसिटीज में डिफरेंसेस रहते हैं। देयर आर अराउंड 270 ऑफ इंटेंसिटीज फॉर ईच ऑफ दिस एंड दे प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ, ठीक है। तो रेड, ब्लू और येलो, इससे आप इसको थोड़ा वेरिएशन करोगे तो आपको क्या बोलते हैं, डिफरेंस पता चलेगा। एंड यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व आपका एंड्रॉयड, मतलब सॉरी, एक तो आईपीएस डिस्प्ले पैनल होता है फोन में, एंड दूसरा होता है आपका रेटिना डिस्प्ले, जो आपको इसमें आईओएस में मिल जाएगा, ठीक है। इनमें भी डिफरेंसेस रहते हैं। यू कैन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप जब नेक्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटेशन के लिए आओगे, तो डू सी, डू ऑब्जर्व योर मोबाइल फोन अंडर माइक्रोस्कोप, आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है, मतलब अदर देन माइक्रोबायोलॉजी, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। वैसे ही जो सेम थिंग जो फ्लोरोफोर्स है उसको भी सेम कैलकुलेट किया जाता है, तो आपको बहुत सारे डिफरेंट कलर मिल सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली दिस कलर्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड बाय नेकेड आइज, तो आपको लेजर डिटेक्शन मेथड यूज करना है। एसिंटिलेशन काउंटर जो रेडियो एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। Semi quantitative, possible to use an optimal scanner to quantitative. Okay. Amount of signal produced on a film, but ये time of exposure important है, और ये important है कि time of exposure should be linear, मतलब आप ऐसा उसको ऑप्टिमाइज करो कि जो टाइम ऑफ एक्सपोजर है आपका जो क्वांटिटी है वो लीनियर फैशन में रहना चाहिए, तब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो लीनियर फैशन में ये सर, ठीक है, माइग्रेशन डिस्टेंस और बहुत सारी चीजें, तो इधर डीएनए भी हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं, अननोन डीएनए को क्वांटिफाई किया जा सकता है, बट थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट रेंज में मिलेगा, एकदम परफेक्ट रेंज में नहीं। आगे चलते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे, जैसे ये एक टाइप का ये परफेक्ट डीएनए बैंड नहीं बना, तो ये इधर देखो, इधर इधर ये सेपरेट हुए अच्छे, बट ये सेपरेट नहीं हुए, कुछ में ये सेपरेट अच्छे से नहीं हुए, कुछ में इधर नीचे भी अच्छे से सेपरेट, ठीक है। डिपेंड करता है आप कितना स्पीड में भगा रहे हो, कितने टाइम के लिए भगा रहे हो, एंड ये ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, तो वैसे डेट सेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोग डीएनए सेपरेशन की बात कर रहे हैं। डीएनए जब हम लोग एगारो जेल में रन कर रहे हैं, तो कौन सा डीएनए कितने स्पीड में भागेगा, तो सेम डीएनए जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर फैशन में, और सेम डीएनए इज इन सर्कुलर फैशन, एंड सेम डीएनए इज आल्सो इन सर्कुलर फैशन, बट ये क्या है, आपका ये सुपर कॉइल्ड, तो कौन सा सबसे स्पीड में भागेगा, ऑब्वियसली सुपर कॉइल्ड। जितना ज्यादा सुपर कॉइल्ड रहेगा उतना स्पीड में आगे जाएगा, जितना कम सुपर कॉइलिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कुलर है, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये इधर डीएनए, ठीक है, तो इधर कौन सा चार्ज होना चाहिए, इधर ये वाले साइड में, और ये वाले साइड में कौन सा चार्ज होना चाहिए, राइट साइड में कौन सा चार्ज होना चाहिए इधर, अगर मैं इधर डीएनए डाल रहा हूँ, ठीक है, मेरा बेल्स इधर है, बट ये चार्ज कौन सा होना चाहिए और ये चार्ज कौन सा होना चाहिए, यस बता सकते हो। हेलो, सब सो गए।
नींद आ रही है बहुत ज़्यादा? 11 o'clock होने वाला। ठीक है सर पॉजिटिव ना? राइट वाला पॉजिटिव। पक्का? यस पॉजिटिव राइट वाला पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा और और लेफ्ट वाला नेगेटिव। क्यों? सर डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। Okay, so perfect. So DNA is negatively charged, so positive charge में attract होगा and then it will. So each and every part of DNA has same overall charge. ठीक है? तो उसमें difference नहीं आएगा. तो difference खाली किस में आएगा? Sizes. तो जो सुपर कोल्ड DNA रहेगा वो सबसे आगे जाएगा. ठीक है? सबसे आगे पॉइंट बनाएगा. फिर आपका ये कोवेलेंटली क्लोज सर्कल CCC और फिर आपका लीन. ठीक है? तो आप DNA को ऐसे सेपरेट कर सकते हैं on the basis of their size. तो माइग्रेशन पैटर्न पे आप चेक कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अगारुस, क्योंकि अगारुस का मुझे बताओ, अगारुस का जो वो साइज रहता है एंड पॉलीएक्रिलामाइड का रहता है, उनमें क्या फर्क रहता है? किसका पोर साइज काफी बड़ा रहेगा, अगारुस का या पॉलीएक्रिलामाइड? अगर उसका बड़ा रहता ना? पक्का बड़ा रहता है? हाँ, करेक्ट है. पॉलीएक्रिलामाइड का small pores is so we use polyacrylamide gel. सो फॉर सीक्वेंसिंग we use polyacrylamide cell क्योंकि उनका पोर साइज डिफरेंट है. therefore even in one nucleotide difference we can separate DNA. तो हम लोग को डिफरेंट मतलब जो डीएनए है वो सेपरेट हो जाएगा इवन विद वन न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस. दैट्स व्हाई पॉलीएक्रिलामाइड यूज किया जाता है. एज हम लोग नॉर्मल अपने लैब लेवल के लिए. सो तो और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है. आपका अगर अगारोस है तो आप कम क्वांटिटी में डाल दो तो जीनोमिक डीएनए सेपरेट करने के लिए कम आएगा. हायर क्वांटिटी में डाल रहे हो तो प्लाज्मिड सेपरेट करने के लिए इजीली कम. वैसे ही पॉलीएक्रिलामाइड के लिए भी तो उसको पोर साइज को कंट्रोल किया जा सकता है विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉलीएक्रिलामाइड या सॉलिडिफाइंग. ओके, रेजोल्यूशन एंड सेंसिटिविटी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं बाई यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल, और जितना थिन होगा उतना अभी आते हैं हम लोग डीजीजी में, डीनेचर ग्रेडियंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. फिर से बोलता हूँ, डीनेचर ग्रेडियंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो क्या बोल रहे हैं? ये जो साइज रहता है ये काफी बड़ा रहता है नॉर्मल से, और इसमें टेम्परेचर का ग्रेडियंट यूज कर सकते हो. ठीक है, मतलब इधर जैसे 50 डिग्रीज है, इधर 60 है, 70 80, इधर 1 डिग्रीज का भी फर्क निकाल सकते हैं, 90 तक भी जा सकते हैं. ठीक है, और यह अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट यूज नहीं करना है, यू हैव टू यूज अनदर ग्रेडियंट विच इज केमिकल ग्रेडियंट. केमिकल ग्रेडियंट में यूरिया यूज कर सकते हो या फॉर्मल्डिहाइड. आई थिंक फॉर्मल्डिहाइड, तो यूरिया तो पक्का है. अभी ये क्या करते हैं, जो टेम्परेचर और या कोई भी ग्रेडियंट यूज कर रहे हो, केमिकल ग्रेडियंट यूज कर रहे हो, टेम्परेचर ग्रेडियंट यूज कर रहे हो, ये क्या करते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए डबल स्टैंडर्ड फॉर्म है. ठीक है, तो ये जैसे आगे मूव कर रहा है तो इट इज फीलिंग, मतलब फीलिंग नहीं, तो इट इज अंडर मतलब जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इंक्रीज होता जाएगा या टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, दोनों में से एक, दोनों भी नहीं देगा. तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, तो इधर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और अगर मैं अगर यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रख रहा हूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज. ठीक है, दोनों यूज करता हूँ, बट उसमें से एक फैक्टर को मैं कांस्टेंट रखूँ. अब होता है क्या, विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, डीनेचरेशन जो डीनेचरिंग एजेंट है फिजिकल या केमिकल, जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए मूव करता है वो आगे जाता रहता है, एंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर या केमिकल कॉन्सेंट्रेशन, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए अचानक से
क्या होता है, क्योंकि ये डीनेचरिंग एजेंट है तो ये सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ये सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या हो गया, इसका लिनियर जो है वो साइज इंक्रीज हो जाता है एंड इट इज restricted at that site. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर दो डीएनए सैंपल्स है इधर, जैसे दो मैं वेल्स में डाला और दोनों का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इट इज डिफरेंट बाय ओनली वन न्यूक्लियोटाइड, देन टू आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दैट, क्योंकि ये दोनों अलग बैंड्स बनाएंगे। ठीक है, अलग बैंड्स बनाएंगे because of because of difference of one nucleotide also it can differentiate DNA. So ये बहुत अच्छा रहता है, मतलब you can work with it. स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ज़्यादा नहीं 6 months लगता है, 6 months of standardization and 6 months of running your experiment repeatedly replicates में, ठीक है, and with n number of sample रहेगा तो वो डिपेंड। ओके, तो सो 1 year पूरा आपने डीजीजी को दे दी। ओके, बिकॉज आई हैव लर्न फ्रॉम सीनियर्स, मतलब उन्होंने they had predicted this timeline कि 6 months में स्टैंडर्डाइजेशन, 6 months में they will run this। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ सीरीज ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड लेंथ डिफरेंस, एक न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंस से भी मैं इनमें डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं कुछ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे इकोलाई ले लिया, उनका डीएनए ले लिया, आई रन दिस डीएनए, तो आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ईच एंड एवरी स्पीशीज। दूसरे मेथड्स है जो है आइसोपिक्टिक बाइंडिंग। ठीक है, सबके, क्योंकि जो डीएनए अगर डिफरेंस है बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटीज में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेंट्रिफिकेशन कर सकता हूँ एट हायर स्पीड्स एंड मैं एक पर्टिकुलर डेंसिटी रखूँगा। जैसे आपका ग्लिसरॉल के ग्लिसरॉल बोल रहा हूँ, सुक्रोज डेंसिटी अगर आपने सुना रहेगा, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। ठीक है, 80% सुक्रोज ऊपर रहेगा, 75, 70, 60, 65 ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, रिड्यूस होते होते 520 20 तक जा सकता है। ठीक है, तो जो डीएनए रहेगा वो एक पर्टिकुलर डेंसिटी में आके इधर रुक जाएगा एंड वी कैन आइडेंटिफाई दिस, ये डीएनए का डेंसिटी कितना। इट इज बेस्ड ऑन जीसी कंटेंट, कितना जीसी कंटेंट जाता है। अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन कर सकते हो विद इंस्टेड सुक्रोज में सीसियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। ये तुमने पढ़ा है इसमें N15 और N14 का जो डीएनए था, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए निकालना, उधर से यस सर, पढ़ा है क्लोराइड सेंट्रिफिकेशन एक्सपेरिमेंट। अभी अभी आवाज आ रही है। ओके, सो बेसिकली मॉलिक्यूल जब तक माइग्रेट करते हैं, जब तक उनकी डेंसिटी पहुंचनी जाती है, एक बार उनकी डेंसिटी मैच हो गई तो उधर ही मॉलिक्यूल्स स्टे कर। नेक्स्ट थिंग, अभी इधर एक ये भी है, सैंपल है, उसको फ्लोरेसेंटली लेबल किया जा सकता है एंड मुझे मेरा टारगेट सैंपल इधर है, जैसे तो मैं इधर नीचे पंचर करके एयर ड्रॉप निकाल के एंड देन फिर आई कैन कलेक्ट दिस केयरफुली कलेक्ट कर। तो मुझे जैसे फॉर एग्जांपल ये चाहिए, उसके फिर मैंने नीचे होल मारा एंड देन आई कैन कलेक्ट दिस एरिया एंड फिर उसको और रिफाइन करके मैं उसमें से जो मुझे रिसर्च है वो कैरी आउट। ठीक है, तो इसमें जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन में आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए को फिर सिंगल स्टैंडर्ड से सेपरेट कर सकते हैं, आरएनए को डीएनए से भी सेपरेट कर सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन ओनली डेंसिटी, ना कि आपका क्या बोलते हैं सीक्वेंस बेस्ड सेपरेशन नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन डेंसिटी। ठीक है, अगर मैं N15 यूज करूंगा N14 की जगह तो उधर भी डेंसिटी इंक्रीज होगी।
तो इसमें चॉइस ऑफ जो ग्रेडियंट मटेरियल है, जैसे अगर मैं इंस्टेड ऑफ सुक्रोज में सीजियम क्लोराइड यूज करूँ तो मेरे को उस हिसाब से रिजल्ट भी वैसे मिले, ठीक है। डेंसिटी एंड रिजल्ट दोनों प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली अच्छा वाला मटेरियल यूज करूँगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, गंदा मटेरियल यूज करूँगा मतलब जो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, आपको रिजल्ट भी बेकार मिलेगा। Okay, hopefully this was clear. This session is over for now. 11 o'clock हो चुके। Yes. So समझ में आया कि ऊपर से क्या? सर